the table. I think my name is Peter. I'm almost 28 years in IKEA. And I think you always have this quite of exciting moments. And I'm here now 4.5 years in India. I was coming from leading the biggest country, which is IKEA Germany, now to the youngest country, which is IKEA in India. But from our outlook and our perspective, this will become, in a short period of time, one of the most important markets for IKEA and for Inca in the world. We're coming with a vision. We would like to create a better everyday life for the many people. But we're also coming with a purpose. That means wherever we are doing our business, we would like to create a positive impact on people, on society, on the environment, and take our responsibility also for the planet we are living on. We are growing in India. We are very young still here, so we have been opening our store in Hyderabad almost 3 years ago. We have been close to Christmas. We have been opening our store in Mumbai. We are under construction in Bangalore, but if you look on Delhi NCR, Delhi NCR is in India the most important market. And we also to the top 30 markets that we have been deciding along in globally here, where we focus on. And in that part, Uttar Pradesh is a prioritized state for our expansion plans, and also with Noida. The site but purchased reflects also the Inca Group commitment. Even in times of COVID and maybe with unpredictable economic outlook where we have all over the world, it shows the group commitment to develop its business and to expand in new markets, and to expand in India, and to expand in Delhi, and to expand in Noida with our IKEA anchor destinations. It's the first place in India where we go together with Inca centers. So that's our colleagues from that part. We would like to have that land will become a powerful retail attraction, and will also provide experiences which go far beyond shopping, and to reflect the needs of the local markets. To build a new retail destination that will match the lifestyles of the fast-growing middle class across India's national capital region. The sign is in line with our ambition to meet over the next 4 years 200 million people in India, and we're now asking for a strong support for that. We are really excited about that. These are these milestones, and we're asking for all involved and all stakeholders in the government and also with the authorities to pick up the project and complete in the fastest record time what we have there. So let's open Noida, Jaldi, After support is needed. Thank you all for your support already and for making that exciting day possible. Now I would like to hand over to my colleague, please. डेस्टिनेशन बनेगी दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंतव्य बनेगा और एक बहुत उत्तम उदाहरण बनेगा कि विकास और पर्यावरण इनको इकट्ठा साथ लेके कैसे चलाएगा। आई शुड लाइक मिलाकर सीओ नोएडा मैम से और डायरेक्टर इनका सेंटर एक दुखद चीज होगा कि आपस में 20 टीम का एक्सचेंज करें। मैं माननीय मंत्री औद्योगिक विकास श्री सतीश महाना जी से अनुरोध करूंगी कि अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज नोएडा के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के शुरुआत के अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन, दिशा और काम करने की ऊर्जा
ऊर्जा देने के लिए उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, हमारे ACS श्री शशि प्रकाश जी गोयल, श्री अरविंद कुमार जी, श्री नवनीत जी, and I would like to welcome Mr. Peter to that said very great words for Uttar Pradesh now, because you know that Uttar Pradesh is expanding and it is a potential area for the investment also. Thank you very much, Peter, for coming to Uttar Pradesh and investing in Uttar Pradesh. इस कार्यक्रम में उपस्थित CEO नोएडा, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बंधु, महाराज जी आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश एक नई दिशा और नए स्वरूप में बदल रहा है। IKEA का एक शोरूम हैदराबाद में है, मेरे को वहाँ पर जाने का अवसर मिला लगभग 3 वर्ष पूर्व। तो ध्यान में आता था कि जो लोग विदेशों से दिल्ली उतरकर बहुत दूर दूर अन्य प्रदेशों में, अन्य जिलों में जाकर अपना एस्टैब्लिशमेंट स्थापित करते हैं, इनको अब उत्तर प्रदेश में एक नया अवसर मिलेगा। और मुझे एक बात को कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक नया इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र है। मैं कहता हूँ कि न्यू एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, नया युग की शुरुआत है उत्तर प्रदेश में, और उसमें बहुत तेज़ी के साथ चाहे देशी कंपनियाँ हों चाहे विदेशी कंपनियाँ हों, आज उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रही है। नोएडा ने लगभग 47-48 हज़ार स्क्वायर मीटर लैंड इनको दी थी, लेकिन उसके बाद कोविड के कारण थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप हो गया, और जिसके कारण IKEA के लोगों ने कई बार प्रयास किया, और आपके दिशा निर्देश में हम लोगों ने कोविड में भी कई बार इन लोगों से बैठक करी, वर्चुअल मीटिंग करी, लेकिन मेरा एक इच्छा थी कि बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल बैठक में नहीं निर्णय हो पाता, तो मैंने IKEA के अधिकारियों को ये रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ पर आओ। उसमें हमारे CEO नोएडा और हमारे विभाग के संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तो हम लोगों ने एक ही मीटिंग में जो इश्यूज थे वो सारे के सारे रिजॉल्व कर दिए, और उनका रिजॉल्व करने के बाद IKEA ने इस बात का निर्णय किया कि वो एक मुश्त पैसा जमा करा देंगे। उसी मीटिंग में लगभग इनको 1900 स्क्वायर मीटर लैंड जो इनके साथ जुड़ी हुई थी वो भी देने का निर्णय किया, तो इन्होंने स्वीकार किया, और वो हमारी पॉलिसी और नीति के अनुसार जो है उसका रेट हम लोगों ने लिया। इन्होंने लगभग 850 करोड़ रुपया कल नोएडा अथॉरिटी को एक मुश्त जमा करा दिया। महाराज जी, जिस समय विदेशों में जाकर बहुत बड़ी चीज़ें, जिसमें हम इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करते थे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते थे, तो उस समय बहुत सारे देशों में जाकर उनका उदाहरण दिया करते थे। आज मुझे गर्व है कि आपके नेतृत्व में अगर दुनिया भर में किसी भी प्रकार का कोई इस्टेब्लिशमेंट नए आएंगे तो उत्तर प्रदेश के इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स का उदाहरण देंगे कि यूपी में भी इस प्रकार का प्रोजेक्ट लगा है जिसको दुनिया ने फॉलो अप करना है। IKEA पे यहाँ पर इनके द्वारा स्थापित जो किया जाएगा अपना सेंटर, उसमें शॉपिंग मॉल है, होटल है। नोएडा में होटल, एक अच्छे होटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। I think that Mr. Peter, you got an opportunity to establish hotel there in Noida also, because it is well required, and आपका बहुत अच्छा, I think that you will get benefit out of it, I am sure. This is win-win situation for both of us, for IKEA and for Uttar Pradesh also. So I once again thank you, and I would like to submit once again that now Uttar Pradesh, under the leadership of our Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, so you will find more opportunities for expansion in other cities also of Uttar Pradesh. I would like to welcome you to come to many other cities of Uttar Pradesh also, as you have invested in Hyderabad, Mumbai, and some other, Bangalore also, as you said you are doing it. So I would like to invite you to set your establishments and these type of malls in other big cities also in Uttar Pradesh. Our government is there to support you for a strong hand holding, and as you know, all these issues which were pending for the last few months, you can say, because of COVID, otherwise वो भी pending नहीं होते. Now you are there with this new project. I welcome you and congratulate you, and मैं अपने विभागीय अधिकारियों को भी बहुत प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने मेरे साथ मीटिंग फिक्स करके इसका निर्णय कराने में सुविधा दी, और
और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जो नीतियाँ बनाई, जो पॉलिसीज़ बनाई, जो एक वातावरण दिया, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत एक सपोर्ट दिया बिजनेस को, उसके कारण उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर आगे ले जा रहे हैं। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ इस अवसर की, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, लगभग 5500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 2000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और लगभग आई थिंक 20,000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ से मिलेगा। उसके लिए मैं सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करें। नोएडा प्राधिकरण तांबेसर्स इंगिका सेंटर्स इंडिया यानी आइकिया के मध्य भूमि हस्तांतरण लीज डीड विनिमय समारोह के आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव तथा प्रदेश के औद्योगिक एवं स्थापना विकास के आयुक्त श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री एस.पी. गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, सीओ नोएडा श्रीमती रितु माहेश्वरी जी, आइकिया के कंट्री हेड श्री पीटर, आइकिया से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण और उपस्थित सभी महानुभाव, नोएडा अथॉरिटी और आइकिया के बीच डीड विनिमय समारोह के आज के इस अवसर पर मैं इन दोनों संस्थाओं के प्रति हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आइकिया देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल नोएडा में इस निवेश को मूर्त रूप देने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का न केवल आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, अपितु देश के सबसे अधिक युवा भी उत्तर प्रदेश में हैं और देश का सबसे बड़ा मार्केट भी अपने आप में उत्तर प्रदेश है। भारत के अंदर निवेश की जो सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में दुनिया के सबसे अच्छे निवेश के लिए हमारे पास निरंतर प्रस्ताव आ रहे हैं। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, उस समय हम लोगों ने न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने में, बल्कि प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने में जहां सफलता अर्जित की, वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर न केवल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को भी आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। जो कुछ बड़े निवेश इस दौरान वहां पर हुए हैं, इसमें
डाटा सेंटर की स्थापना के साथ ही देश का पहला डिस्प्ले यूनिट भी हमारे इस क्षेत्र में तेजी के साथ उनकी स्थापना का कार्य आगे बढ़ रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेसर्स आइकिया का यह निवेश भी यहाँ पर मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी अपनी बहुत पारदर्शी और व्यवस्थित नीतियां प्रदेश शासन की हैं, जिससे किसी भी निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या प्रदेश के अंदर निवेश करने में न हो। और प्रदेश के अंदर हम लोग न केवल निवेश परक और रोजगार उन्मुखी उद्यमों की स्थापना की दिशा में मजबूती से कदम उठा सकें, बल्कि अधिक से अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित कर सकें। इस दृष्टि से प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां और प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जहां बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं साथ ही साथ आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइकिया अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका महिला सशक्तिकरण, बाल विकास सहित सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में भी इन्हें महारत हासिल है। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 5500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से भूमि संबंधी नोएडा की भूमि हस्तांतरण से संबंधित जो कार्रवाई इसके साथ ही प्रारंभ हो रही है, यह प्रदेश के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में काफी बड़ी मदद करेगा। आइकिया जन सामान्य के लिए इस क्षेत्र में न केवल शॉपिंग मॉल, होटल, ऑफिस, रिटेल आउटलेट आदि के निर्माण की कार्रवाई एक समय सीमा के अंदर करेगा, बल्कि आने वाले समय में यहाँ प्रदेश के अन्य शहरों में भी निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देगा। मैं एक बार फिर से आइकिया ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपका जो निवेश है यह आइकिया के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि यह निवेश ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जहां पर पहले से ही हम एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी एक नई फिल्म सिटी यमुना अथॉरिटी में प्रस्तावित है और भी तमाम प्रकार के निवेश उस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आइकिया अपने इस निवेश के माध्यम से देश के सबसे बड़े बाजार में भी प्रवेश करने के साथ ही उन्हें अपने इस निर्णय पर गौरव की अनुभूति होगी कि उन्होंने नोएडा में किए हुए इस निवेश के माध्यम से जो निर्णय लिया, जिसके लिए प्रदेश सरकार और हमारे औद्योगिक विकास विभाग के द्वारा उनसे बार बार और बहुत समय से जिस बात के लिए एक संवाद बनाया गया था, उन्हें स्वयं अपने इस निर्णय पर आने वाले समय में गौरव की अनुभूति होगी कि उनका जो निवेश है एक अच्छे स्तर पर और उनके स्वयं के निवेश को कई गुना बढ़ोतरी करने में एक निर्णायक साबित होगा। एक बार फिर से मैं नोएडा अथॉरिटी को और आइकिया को इस
MOU के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारी अथॉरिटी भी समयबद्ध ढंग से निवेशकों के विश्वास को मजबूती के साथ बनाए रखने के साथ ही कार्य करेगा और आइकिया जैसी संस्थाएं उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश को सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में चुनते हुए और भी अधिक निवेश न केवल NCR रीजन में बल्कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सहज रूप से करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।